हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम है. दिस एल्गोरिदम इज फॉर अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, and if weighted graph is given, then we have to find the shortest path from some starting vertex to all other vertices. Let us say that I am selecting a starting vertex as 1. Okay, 1 is the my starting vertex, and then I have to find out the shortest path to all the vertices, maybe a directed path or via other vertices. I can select any one of the vertex as a source vertex. So as we have to find out the shortest path, so it is a minimization problem, and minimization problem is a optimization problem. So optimization problem are solved by using greedy method. Greedy method says that a problem should be solved in stages by taking one step at a time and considering one input at a time to get an optimal solution. And the greedy method, there are predefined procedures, and we follow that procedures to get the optimal solution. So Dijkstra algorithm gives a procedure for getting a optimal solution, that is minimum result. Dijkstra can work on a directed as well as non-directed graphs. So Dijkstra algorithm always select a vertex with the shortest path, then it will update the shortest path to other vertices if possible, and this is called as relaxation. हम इसको इस तरह से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है. हमारे पास 1 से 2 पे जाने का हमें रूट दिया है 2 से 3 जाने पे, लेकिन 1 से 3 जाने का कोई भी रूट नहीं है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 से 2 पे जाने के लिए हमें जो लग रहा है वेट वो 2 है, और 2 से 3 के लिए 4 है. ठीक है, दिस ओके. नाउ अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक आप वर्टेक्स ले सकते हो. मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ वर्टेक्स लिया 1 वर्टेक्स. ठीक है, if 1 is the starting vertex and I want to find the shortest path to 2 as well as 3. So if you see from this graph, there is a direct path to vertex 2, so its cost is 2. इसकी cost कितनी है? 2 है. And there is no direct path from 1 to 3. Okay, and we don't know what is the path from 1 to 3. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें नहीं पता है कि पाथ का कौन सा पाथ है, तो हम उस नोड को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? इन्फिनिटी से. ओके, नाउ हमने यहाँ पे इन्फिनिटी से कर दिया, और 1 से 2 जाने के लिए जो है, जो वेट लग रहा है वो 2 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. Now we do the relaxation for vertex. Whenever we select the shortest path, we will try to relax other vertices. Now Dijkstra says that once you have selected one of the shortest path, then check that there is any other shortest path to other vertex. तो अब हम यहाँ से 2 से 3 पे जाएंगे, और 2 से 3 पे जाने के लिए हमारे को 2 + 4 करना पड़ेगा. 2 + 4 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. अब 6 को चेक करेंगे क्या ये इन्फिनिटी से कम है कि ज़्यादा है. तो 6 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 6 से. ओके, so this means that there is a shortest path from the vertex 1 to 2 and from 2 to 3. 1 से हम 2 पे जाएंगे, मतलब there exists a shortest path from 1 to 2, 2 to 3. okay, so Dijkstra algorithm always select with the shortest path, then it will update the shortest path to other vertex if possible, and this updation is called as relaxation. Like इसका फॉर्मूला है if d of u का मतलब है कि जो है डेप्थ ऑफ u एंड d of u कॉमा v. u कॉमा v मतलब डिस्टेंस, h का क्या डिस्टेंस है. अगर ये वैल्यू लेस देन d of v है,
तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ वी की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू और v के बीच की, और उसको रिप्लेस कर देंगे हम जो है d ऑफ v की वैल्यू से. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलैक्सेशन. वी डू द रिलैक्सेशन फॉर द वर्टेक्स whenever we select the shortest path, we will try to relax other vertices. Okay, now इसको हम डिसगेस्ट्रा एल्गोरिथम को हम इस जो है एग्जाम्पल से समझते हैं. वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द फॉलोइंग ग्राफ. ये हमारे पास ग्राफ दिया है. पहला स्टेप होगा कि आपको क्या करना है, कोई भी एक एज सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक एज. उस एज से आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ सभी और एजेस के लिए निकालना है. ठीक, तो हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या लिया है 1, तो इट इज रिटन एज 0. इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है 0 पे है. ठीक है, उसके बाद बाकी के जितने भी जो है नोड्स हैं उनको आपको इन्फिनिटी से असाइन कर देना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि क्या जो है शॉर्टेस्ट वैल्यू है, कम वैल्यू कौन सी है. हमने इन्फिनिटी से उसको असाइन कर दिया है. नाउ अब 1 से हम चेक करेंगे कि कौन से डायरेक्ट कनेक्टेड जो है वर्टिसेस हैं. यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टिसेस कौन से हैं, 2 और 3 है. 2 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का जो ये है उसको रिलैक्सेशन देंगे. तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 + 4 कितना हो जाएगा 4. ओके, तो अब हम इसको रिलैक्स करेंगे. जब रिलैक्स करेंगे तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2 और 4, क्योंकि 2 की वैल्यू जो है इन्फिनिटी से लेस थी, तो हमने 2 को रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को 2 से रिप्लेस कर दिया, सॉरी, और यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को 4 से रिप्लेस कर दिया. अब दोनों में शॉर्टेस्ट जो होगा 2 और 4 में जो शॉर्टेस्ट है उसकी तरफ जो है डायरेक्ट हो जाएगा पाथ मेरा. 1 से मैं 2 की तरफ जाऊंगी. अब मैं 2 से चेक करूंगी कि 2 से डायरेक्ट कौन से कनेक्टेड पाथ है, एक तो 4 है, एक और 3 है. अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी, इनको पहले वर्टेक्सेस को रिलैक्स करूंगी. तो यहाँ पे 2 + 1 कितनी वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4 है. तो 4 को जो है मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगी. तो देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई. और यहाँ पे 2 + 7 कितना हो जाएगा 9. तो इन्फिनिटी को मैं किससे रिप्लेस करूंगी 9 से रिप्लेस करूंगी. ओके, और अब चेक करूंगी कि 9 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू मेरी शॉर्टेस्ट है. शॉर्टेस्ट पाथ आई विल चेक. तो मैं अब 3 की तरफ, मैं कहाँ से 1 से 2 पे आई, 2 से मैं 3 की तरफ जा रही हूँ. रेड जो हो रहा है वर्टेक्स उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, अब मैं 3 पे थी, तो 3 से मैं चेक करूंगी कि कौन सा जो है शॉर्टेस्ट है. शॉर्टेस्ट में मेरा देखिए, पहले तो मैं रिलैक्स करूंगी वर्टिसेस को. 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 7, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो यहाँ पे 9 थी. अब यहाँ पे सबसे एक ही वर्टेक्स है डायरेक्ट कनेक्टेड, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और इस इन्फिनिटी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी 6 से रिप्लेस कर दूंगी. और क्योंकि बिकॉज 6 इज लेस देन इन्फिनिटी. अब इस यहाँ से मैं शॉर्टेस्ट 5 से चेक करूंगी. यहाँ पे देखेंगे, अब मैं 5 से चेक करूंगी और किसकी तरफ मूव करूंगी 4 की तरफ. कौन सा शॉर्टेस्ट है, यहाँ पर आके सबसे पहले मुझे क्या करना है कि वर्टेक्स को रिलैक्स करना है. तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8. तो इस 9 को, ये 9 था मेरा, 9 को मैं 8 से रिप्लेस कर दूंगी. और यहाँ पर इसको कैसे रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे मेरा क्या है 6 है, 6 + 5 11. तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी को मुझे 11 से रिप्लेस करना पड़ेगा. 8 और 11 में सबसे स्मॉलेस्ट वन कौन सा है आपका, हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8. तो मैं 5 से 4 की तरफ मूव करूंगी. अब 8 से कौन सा डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका वर्टेक्स 6. तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9. इस 11 को मैं किससे, अब हम इन्फिनिटी को क्या करेंगे, इस जो है 11 था, 11 को हम क्या करेंगे इस 9 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, और अब हम देखेंगे हमारे पास जो स्पैनिंग ट्री निकल कर आया है, ये क्या है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 4, 4 से 6 है. तो दिस इज द स्पैनिंग ट्री. और हम जो है इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं. हमने अगर हमें 1 से 2 पे जाना है तो 2 है, 1 से अगर मुझे 3 पे जाना है तो वैल्यू 3 हो जाएगी,
1 से मुझे 5 पे जाना है तो कॉस्ट मेरी 6 आएगी, 1 से मुझे 4 पे जाना है तो कॉस्ट मेरी 8 आएगी, 1 से मुझे 6 पे जाना है तो कॉस्ट मेरी 9 आ जाएगी। तो दिस इज डिस्केस्ट्रा एल्गोरिदम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।